Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. We are going to study today Archimedes principle. That is the further step from the buoyancy and the buoyant force. तो हमने अभी तक ये जाना है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी पानी के अंदर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर जाती है, इमर्ज्ड होती है, तो उसे क्या लगता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि पानी लगाता है या फिर कोई भी लिक्विड या फिर कोई फ्लूइड लगाता है, ठीक है। तो उसे वो जो फोर्स मिलता है, ठीक है, ये फोर्स जो होता है उसे हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना, एक लिक्विड की टेंडेंसी, एक फ्लूइड की टेंडेंसी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उसके अंदर जा रही है उसके ऊपर एक यू कैन से बायोएंट फोर्स लगाता है. सो दिस टेंडेंसी इज नोन एज द बायोएंसी. ऑलराइट, सो नाउ वी ऑलरेडी नो दैट थिंग जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है दैट इज गोइंग टू टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दी, यू कैन से द वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जितना फ्लूइड जो हमने डिस्प्लेस किया है या फिर कोई भी बॉडी अगर किसी भी लिक्विड के अंदर जाती है, इमर्ज होती है, तो फिर वो कितना उसका वेट हो जाता है, कितना लॉस इन वेट हो जाता है. एक्चुअली दैट कैन बी सेड बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट. एंड जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज टोटली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी, आइदर यू कैन टेक दैट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन or the Olympiad level. So basically you need to study this topic so that you can crack the NTSC, NSC, JS, right, and you can definitely crack the school examination also. You should definitely study that topic. That is one of the most important topic. And if you want to access the DPPs and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write TTB009 in the search box of the Telegram app. If you do so, and then our channel appears, and then though that channel, specifically that channel is going to give you the DPPs and study material for class 9, and you will be getting the, you can say the things, or you can say the notifications of the video classes. That would be very much helpful for you, right. Now see, this is a team which is going to help you a lot, and actually this team is actually working out all the necessary things you need to know so that you can crack any examination and the Olympiad level. Basically that is what our aim is, making you capable of cracking the examination, right. That is why we are providing these lectures, and that these are free of cost, right. These are totally free to everyone. Everybody can study from these video lectures. They can gain access to the quality education from quota here, right. That would be so much needful, right. And the most important step you can take is to share these video lectures to everyone, so that everybody, every person who is not able to afford the quality education can study from these videos lectures, so that he or she can achieve the goals they have set for themselves. That would be so nice to do so, right. So you should do your part. You should share these video lectures to everyone. All right. In accordance to that, we have definitely provided you the video classes, right. But in accordance to that, we have also prepared some packages for you all, the full package and the test series. So basically you can see, you can go on the website www.talkingtextbooks.in. When you go on that website, you will be getting two type of packages, the full one and the, you can say, the test series, right. Now the full package, as the name suggests, anything can, you can say the most important thing or the full thing are included in that. So basically you will be getting all the necessary things like this study material, right. You will be getting a focus study material. You will be getting so much questions to practice into that study material. That would be a good thing, right. All the necessary knowledge and all the things you need to know will be there. Next thing, you will be getting the video and live classes, which is of course you are going to get, right. Third thing is the homework submission. Homework submission feature is important, as you are doing the homework and you will be submitting to us, right. And then the next thing appears, and that is the, you can say, the bi-weekly quizzes and the periodic test paper. So that is the testing part. So basically you will be like watching the video, all right, and then you will be attempting the test, watching the video, again attempting the test. So you will be getting like, you have to you can say you have to attempt 2 tests per week. That is the most important thing, right. And then you will be getting the periodic test paper. So basically periodic test papers are going to tell you what is the, you can say, the final pattern of the examination you're gonna face, what is the structure of that paper pattern, right. That would be helpful to you all,
right? So whenever you try to attempt the paper, that is the familiar pattern you should get to, right? तो basically कितने questions आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, and कितने time में आपको कितने questions solve करने हैं, what should be the speed, what should be the accuracy, and the time management factor that is so important. So all such factors will be cleared out and you will be dealing with it, so by just going through the periodic test papers. All right, so you can definitely join that, right? And if you are only interested in the testing part, you can do that too. You can definitely join the test series. What you will be getting, the periodic test papers, recorded in live classes, bi-weekly quizzes, you will be getting that, right? If you are interested in buying them, you can use my code CYLIVE so that you can get a 30% discount in every package you buy from talkingtextbooks.in. So you can use my code, right? Also, if you have any query and you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, that would be so great if you call us. Now it is the promise time, so promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Alright, now let's get started and let's study the Archimedes principle. अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी हम लोग थोड़े बहुत सब टॉपिक्स पढ़ेंगे. सो व्हाट आर दीज सब टॉपिक्स? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले पढ़ेंगे, व्हाट इज दैट, ठीक है. प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सच है या नहीं, ठीक है. प्रैक्टिकल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रियलिटी में हमें किस तरीके से पता चलेगा. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेंसिटी एंड देन रिलेटिव डेंसिटी. सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डू टुडे इटसेल्फ. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी What is the Archimedes principle? तो statement क्या कहता है? Statement Archimedes principle का ये कहता है when a body is immersed partially or completely in a fluid, liquid or gas, it experiences an upthrust or buoyant force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. That is the Archimedes principle. ये Archimedes principle नहीं है कि सिर्फ वो एक buoyant force feel करेगा, सिर्फ वो ही नहीं, इंक्लूडेड है कितना बायोवेंट फोर्स फील करेगा. कितना करेगा? जितना कि उसकी बॉडी पानी के अंदर है, ठीक है, उतना ही वो एक्सपीरियंस करेगा बायोवेंट फोर्स, राइट. यू कैन सी हियर equal to the weight of the fluid displaced by the body. And do you know that this much of idea जो कि आर्किमिडी को आया, मीन्स ही वॉज लाइक बाथिंग एट दैट टाइम, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो उनके दिमाग में ये पूरा स्टेटमेंट, वो बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहे थे. सो ही वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम टू. सो बेसिकली उस टाइम उनके दिमाग में क्लिक हुआ दैट व्हाट इज इट, ठीक है. ही डिसाइडेड देन, alright, and then he told everyone that actually whenever a body goes into the fluid, goes into the, you can say water, ठीक है, or any fluid, gas or liquid, right, तो जितनी बॉडी पानी के अंदर जाती है, ठीक है, और जो वेट वहाँ पर है, जितना पानी का वेट वहाँ से ऊपर आ गया है. लेट मी टेल यू विद इन, यू कैन से अ डायग्राम, ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ. तो देखो, लेट्स से दिस इज अ बकेट, ठीक है, और यहाँ तक जो है इस लेवल तक पानी फिल हो रहा है, ठीक है, इस लेवल तक पानी फिल हो रहा है, पूरा लिक्विड जो है इसके अंदर है, पानी फिल हो रहा है. अब इसके अंदर अगर आप कोई बॉडी, कोई छोटी सी बॉडी, लेट्स से समथिंग शुड बी लाइक इन शुड लेट मी से जब अ पीस ऑफ मेटल ब्लॉक, लेट्स से, ठीक है. सो इफ यू डू सो, अगर यहाँ पर एक पीस आप किसी भी मेटल का, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से समथिंग विच इज, लेट्स से योर कीज, लेट्स से यू ड्रॉप योर कीज इनसाइड इट, ठीक है. तो जैसे ही आप अपनी कीज को ड्रॉप करोगे, तो क्योंकि वो मेटालिक है तो वो कहाँ चली जाएंगी, दे विल लाइक गो इन टू दी वाटर, राइट, और वो जहाँ पे बेस में जाके चले जाएंगी. लेट्स से दीज आर योर कीज विच आर एट द बेस ऑफ द बीकर और द वेसल, ठीक है. अब ये यहाँ पर अंदर चले गई है, तो क्या हुआ, जब ये अंदर चले गई थी तो देखो इस पूरे के पूरे कंटेनर में पानी ने अपनी जगह बनाई हुई थी, समझ रहे हैं आप. यहाँ पर जितना जितना पानी फिल है, इस पानी ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, इसने पूरा का पूरा कवर अप किया हुआ है पानी ने, ठीक है. अब अगर इस पानी के अंदर ये कीज जाती हैं तो उन कीज को अपनी जगह बनानी पड़ेगी, राइट. तो जब वो अंदर जाती हैं तो वो अपनी जगह बनाती हैं, लिटरली दे डू मेक देयर स्पेस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो जितना जगह कीज ने घेरा है, उस जगह में जितना पानी होना चाहिए उतना ही राइज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है.
तो जैसे ही आप कीज को इसके अंदर डालोगे, कीज पूरी की पूरी सेटल हो जाएंगी, नीचे बेस में चले जाएंगी और पानी का लेवल हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। अब पानी का लेवल यहां तक आ जाएगा, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे अब रीजन क्या है इस चीज का? रीजन यही है कि पानी ने अपना पूरा स्पेस अच्छे से कवर अप करके रखा था। अब कोई और ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर जा रही है तो उसे अपनी जगह बनानी पड़ेगी, राइट? और जब उसने अपनी जगह बनाई तो वहां से पानी को हटना पड़ेगा, तभी तो वो ऑब्जेक्ट पानी में जाएगी, राइट? तो इसका मतलब इस कीज ने जब अपनी पानी के अंदर जगह बनाई तो उतने ही पानी को उसने हटा दिया वहां से और खुद वहां जाकर बैठ गई, राइट? जितना पानी हटा वो कहाँ गया? उस पानी ने क्या किया? अपना लेवल रेज कर दिया, ठीक है। इस की को जगह देने के लिए जितना पानी इस की जगह पर होना चाहिए था वो सारा का सारा पानी ऊपर आ गया। नाउ इट क्रिएटेड अ लेवल जस्ट अबव दी प्रीवियस लेवल, ठीक है। अब पानी हल्का सा इंक्रीज हो गया एंड दिस इज दी यू कैन से द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यही तो वो कहते हैं कि जितना एक बॉडी पानी के अंदर जाती है, जितना भी वेट उस बॉडी का पानी के अंदर जाता है वो एक्चुअली उतना बायोएंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जितना वेट ऑफ वाटर वहां से हट गया है, ऑलराइट। सो बेसिकली इस की ने पानी की जगह ली, थोड़े से पानी की जगह ली खुद को रखने के लिए। जितने पानी की जगह ली उतना ही बायोएंट फोर्स इस पे लगने वाला है, मतलब जितना पानी, जितना वेट ऑफ द वाटर इसने हटाया उतना ही इसके ऊपर बायोएंट फोर्स लगना है, ठीक है। That is the concept behind the Archimedes principle. So you can note the statement. Alright, now let's talk about the proof. What is the proof here? And let us know the proof, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा कि भाई सचमुच ऐसा होता है कि नहीं, क्या सचमुच बायोएंट फोर्स जितना लगता है क्या उतना ही वेट लिक्विड का हटता है, डिस्प्लेस होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें देखनी है। सो लेट अस डिसाइड दैट एंड डू दैट, ठीक है। हमें डिसाइड करते हैं कि भाई हमें प्रूव करना है आर्किमिडी के प्रिंसिपल को, ऑलराइट। एंड आर्किमिडी को प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए वी टेक सम थिंग्स, यहाँ पे हमने कुछ लिया है चीज़ें, जैसे कि हमने एक बीकर को फर्स्ट ऑफ ऑल लिया, ठीक है। एंड देन वी प्लेस्ड अ लिक्विड ऑफ रो डेंसिटी। What is the density here? Rho. That is the density of the liquid is rho, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? Let me tell you. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बॉडी हमने डाल दी, ठीक है। You can see the body here. This is the body, the cylindrical body here inside the liquid of rho density, ठीक है। Consider a cylindrical body of cross-sectional area A submerged in a liquid of density rho. तो यहाँ पर as you can see, what is the area of cross section here? This much. This much is the area of cross section. So this is what? This is A. ठीक है, small a is the area of cross section of the cylindrical body. ठीक है, और इसको हमने रो डेंसिटी वाले एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, उसको अंदर भेज दिया, ठीक है। What happened next is that मान लिया हमने कि जो अपर फेस है, बॉडी का जो अपर फेस है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? F1 फोर्स लग रहा है। मतलब इसके ऊपर जो प्रेजेंट लिक्विड है वो इस सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? वो उसके ऊपर थ्रस्ट लगा रहा है। कितना थ्रस्ट लगा रहा है? F1 थ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ जो इसका बेस है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है, जो थ्रस्ट लग रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज F2, ठीक है। साइड से भी यहाँ पर फोर्स लगेगा बट दे विल कैंसिल आउट, जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा हुआ है, राइट। एंड यू कैन सी हियर देयर इज द हाइट H1। ये जो बॉडी है वो H1 हाइट नीचे है, मतलब इस बॉडी के ऊपर वाले सरफेस से, द अपर सरफेस से लेके पानी के सरफेस तक देयर इज द डिस्टेंस ऑफ हाइट H1, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉडी इज, सिलेंड्रिकल बॉडी का जो बॉटम है वहां से लेके अगर हम लिक्विड के लेवल की बात करते हैं, अपर लेवल की बात करते हैं, तो वहां की हाइट कितनी है? H2 है,
ठीक है, ये सब चीजें हमें पता है। देखो, द लेट द अपर फेस ऑफ द बॉडी इज एट अ डेप्थ h1 बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड लोअर फेस इज एट अ डेप्थ h2 बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो अपर सरफेस है वो h1 नीचे है, पानी के h1 नीचे है, पानी की सरफेस से h1 हाइट नीचे है, और जो बिलो वाला सरफेस है वो h2 हाइट नीचे है। ठीक है, पानी से। दैट व्हाट वी हैव मेजर्ड टिल नाउ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप मुझे खुद से बता सकते हैं कि इस हाइट पर अगर मैं बात करूं, इस अपर एंड पे अगर मैं बात करूं, तो इस अपर एंड पे, इस जगह पे आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पे कितना प्रेशर लगने वाला है, मतलब पूरी बॉडी का जो टॉप पॉइंट है उस पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा। ये चीज तो हमने लास्ट वाले क्लास में, आई थिंक इन द लेक्चर फर्स्ट, we have discussed that, right? देखो, the pressure exerted by the liquid on the upper surface of the body is given by, let me tell you, let it be like given by P1। ठीक है, मैंने उसे P1 नाम दे दिया है। एंड वो कितना होना चाहिए, क्योंकि देखो what is the height of the liquid above the top surface, कितना हाइट है उसका, h1 है ना, मतलब टॉप सरफेस से सिर्फ h1 हाइट ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, right? And we know the density of the liquid too, and we know the acceleration due to gravity. So the pressure would be h1 rho g. ठीक है, h1 rho g, that would be the pressure on the top surface। ठीक है, क्योंकि टॉप सरफेस के ऊपर कितना हाइट का प्रेशर है वो हमें पता चल गया, that is h1, right? Now we know the density, we know the acceleration due to gravity। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, सो डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी इज, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर जितना पानी प्रेजेंट होगा उतना ही तो वो पानी थ्रस्ट लगाएगा उस बॉडी पे, राइट? तो मतलब ऊपर वाला जो पानी है वही थ्रस्ट लगाने वाला है, राइट? अब थ्रस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। लिटरली आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो अगर मुझे ये थ्रस्ट चाहिए, ये थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, तो आई कैन मल्टीप्लाई प्रेशर विद द एरिया। तो अगर मैं इस मतलब टॉप सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो भी इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, अगर वो चीज मुझे पता है और मुझे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, देन आई कैन कैलकुलेट द थ्रस्ट हियर, राइट? एंड व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो हमने जस्ट अभी प्रेशर निकाला है, कितना निकाला है हमने प्रेशर, बट बिफोर दैट लेट मी राइट द F1 हियर। दिस इज द F1 जो कि इसके ऊपर थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट इट वुड बी, इट वुड बी लाइक प्रेशर P1 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, राइट? इस बॉडी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, इस एरिया क्रॉस सेक्शन के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है, इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई वुड बी गेटिंग द थ्रस्ट जो कि ऊपर वाला लिक्विड अप्लाई कर रहा है, राइट? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h1 रो g a। ठीक है, तो हमने F1 पता कर लिया कि भाई ऊपर वाली सरफेस पे इतना थ्रस्ट लिक्विड अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे की तरफ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी। प्रेशर exerted by the liquid on the lower surface. Now you can see the lower surface. ये जो lower surface है इसके ऊपर कितना लगा रहा होगा, तो हमें height पता होना चाहिए, right? हमें height पता होना चाहिए, तो you can see ये जो lower surface है, ये वाला जो lower surface है, हमें इसके ऊपर की height पता होनी चाहिए. What is that? That is H2. ये वाला जो lower surface है वो पूरे surface of the liquid से H2 हाइट पर है, राइट? H2 यू कैन से डेप्थ पर है, ठीक है? तो अगर हमें प्रेशर देखना होगा तो दैट वुड बी P2 और उसके लिए हम लिखेंगे H2 रो G, मतलब हाइट, भाई वो उसके ऊपर कितना पानी है या फिर कितना लिक्विड है या फिर सरफेस से वो कितना डेप्थ में है ना? ये वाला जो सरफेस है वो पानी के सरफेस से कितना डेप्थ में है ये हमें चाहिए.
डेंसिटी चाहिए और g चाहिए, राइट? तो वी कैन गेट द प्रेशर टू, वी कैन गेट द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी. अब हम देखते हैं फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी. तो यहाँ से जो F2 अप्लाई हो रहा है, मतलब नीचे जो पानी है वो क्या कर रहा है, इस बॉडी के ऊपर थ्रस्ट लगा रहा है. तो ये वाला लिक्विड पानी के इस बॉडी के ऊपर कितना थ्रस्ट लगा रहा है, वी नो दैट हाउ, बाय यूजिंग दिस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. वी कैन डू दैट, राइट? सो लेट्स राइट इट आउट. F2 भी हम लगा सकते हैं. F2 would be how much? This is the pressure 2, right? So we can write pressure 2 multiplied by area. So we can get H2 rho G multiplied by A. So we can get the F2. Now we know two forces. Two thrust हमें पता है. क्या पता है? एक तो ऊपर से जितना लग रहा है, एक नीचे से जितना लग रहा है, राइट? बट हमें एक और चीज पता है, और वो क्या पता है कि भाई इस बॉडी के ऊपर साइड से भी तो फोर्सेस लग रहे होंगे. साइड से भी तो पानी फोर्स लगा रहा होगा ना भाई, पानी थ्रस्ट लगा रहा होगा साइड से भी. तो ये वाले जो साइड वाले जो फोर्सेस होते हैं ना, बिकॉज दे आर इक्वल एंड दे आर अपोजिट, दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. ठीक है? तो मतलब यहाँ से जितना भी पानी फोर्स लगा रहा है, यहाँ से जितना भी पानी फोर्स लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? दे विल लाइक कैंसिल ईच अदर. सो बॉडी क्या करेगी? सिर्फ ऊपर नीचे मूव करती है. आपने कभी ऐसा बॉडी को देखा है कि भाई एक बॉडी पानी के अंदर ऐसे चले जाए और आइड साइड मूव करने लगे? ऐसा तो वो नहीं करती. जब जब कोई भी बॉडी पानी के अंदर जाती है, या तो वो ऊपर आएगी या तो वो नीचे जाएगी. तो मतलब से वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करती है. दैट मीन्स जो भी फोर्सेस है वो अपवर्ड हैं या तो डाउनवर्ड हैं, बस, उसके अलावा तो नहीं है. आइड साइड तो नहीं है ना. इसका मतलब कि भाई हमें ये बात पता चल चुका है कि आइड साइड जो भी फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं. तो न्यूट्रलाइज, हम उसको कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है. हालांकि फोर्स है, थ्रस्ट है, बट उनका एडिशन, उनका नेट अगर हम बात करें तो लेफ्ट और राइट नेट जो है वो जीरो हो गया है. सो बॉडी क्या करती है? सिर्फ अप एंड डाउन मूव करती है. ऑलराइट? और बॉडी सिर्फ ऊपर नीचे का ही फोर्स जो है एक्सपीरियंस करती है. ठीक है? अब ये बात हमें भी पता है कि भाई पानी ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है, नीचे से भी फोर्स लगा रहा है. ये बात हमें पता है ना? सो उसके चक्कर में क्या होता है कि क्योंकि पानी क्या करता है? ऊपर से फोर्स लगा रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी को क्या मिल रहा है? अपवर्ड थ्रस्ट मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई F2 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बॉडी ऊपर मूव करेगी, तभी तो बॉडी को अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ जाने के लिए फोर्स मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो ज्यादा है, ऊपर वाला जो फोर्स है वो कम पड़ गया. इसी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट? एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, लिक्विड्स के केस में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ता जाता है. इसका मतलब बॉडी जितना ज़्यादा डेप्थ में होगी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगने वाला है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा उसको फोर्स फील होगा. डेफिनेट सी बात है, उतना ही उसके ऊपर थ्रस्ट फील होगा, राइट? दैट इज वाई वी कैन से कि यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया. कैन यू सी दैट? F1 फोर्स जो कि ऊपर से लग रहा है, F2 फोर्स जो कि नीचे से लग रहा है. अब हमें सब कुछ समझ में आने लगा. जो बगल आइड साइड वाले फोर्सेस थे वो कैंसिल आउट हो गए, बचे सिर्फ दो फोर्सेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जिसमें से हमें पता है भाई नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, इसीलिए तो हमें नेट अपवर्ड फोर्स मिलता है. ठीक है? तो आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं. ऑलराइट, चलो अभी हम लोग नेट कैलकुलेट करते हैं. मतलब अब हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सब्ट्रैक्ट F2 माइनस F1. ठीक है? सो लेट्स डू इट. रिजल्टेंट अपथ्रस्ट फोर्स या फिर रिजल्टेंट बायो एंड फोर्स कितना हमें मिलने वाला है? लेट मी कैलकुलेट दैट.
ये हम F से डिनोट कर रहे हैं, नेट फोर्स हम F से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो F है ये कितना होना चाहिए, F2 माइनस F1 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है भाई जो F2 है जो नीचे से ऊपर लग रहा है वो बड़ा फोर्स है ना, क्योंकि नीचे आते 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 ज़्यादा फोर्स होने लग जाता है, राइट। ऊपर वाला जो फोर्स है जो F1 लगा रहा है वो कम है, ठीक है, लेस इन क्वांटिटी, सो वी डिड दिस, ठीक है। ऊपर से ये भी चीज़ हमें पता है कि भाई क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव होती है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव y ऊपर की तरफ जाता है ना भाई, एक्स वाई तो पढ़े हैं ना हम लोगों ने, राइट साइड में जाते हैं एक्स में तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नेगेटिव मिलते हैं, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव y मिलता है, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव y मिलता है, राइट। तो ये तो हमें डायरेक्शंस पता है ना, प्लस माइनस पता है ना। तो देखो F2 ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर अप्लाई करता है, राइट, दैट मीन्स क्या हुआ कि F2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, वहीं F1 नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ अप्लाई करता है, इसका मतलब नेगेटिव फोर्स है, राइट, इसीलिए हमने F2 माइनस का F1 भी लिख दिया है, ठीक है। अब हम लिखे दोनों की वैल्यूज हमें पता है, तुम लोग अपनी कॉपी से लिखो H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए, इसमें से A कॉमन कर लेते हैं, रो जी कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा H2 माइनस का H1 रो जी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया है टोटल फोर्स आ गया है, ठीक है, H2 माइनस H1 रो जी ए टोटल फोर्स आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है जो कि पानी में डूबी हुई है उसका वॉल्यूम कितना है, लेट्स चेक दैट आउट। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय द बेस एरिया, ठीक है, एंड दी यू कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो हाइट तो इसकी कितनी है h, दैट इज H2 माइनस का H1, देखो ये हाइट है H2 और अगर इसमें से मैं ये H1 माइनस कर दूं, दिस इज H1, अगर ये H1 माइनस कर दूं आई वुड बी गेटिंग द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी एंड यू कैन गेट द एरिया ऑल्सो। सो व्हाट इज द वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, खुद से सभी बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, H2 माइनस का H1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हाइट डिवाइडेड बाय द बेस एरिया, बेस एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता था, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है, हमें हाइट पता है H2 माइनस का H1, क्योंकि दिस इज द H2 एंड दिस इज H1, सो अगर इस बड़ी हाइट में से इतनी हाइट सब्ट्रैक्ट कर दे तो आई वुड बी गेटिंग दिस मच ऑफ हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉडी, सो आई एम गोइंग टू गेट द H2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाय A, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। कैन यू सी द वॉल्यूम हियर इन द फोर्स, H2 माइनस का H1 मल्टीप्लाइड बाय A, तो दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड राइट नाउ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सो नेट फोर्स वुड बी हाउ मच, नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी द फोर्स इज इक्वल्स टू V रो G, कैन यू सी समथिंग हियर, कैन यू सी समथिंग हियर, द फोर्स दैट इज V रो G, तो दैट मीन्स कि भाई हमें ये क्या पता चलता है, प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें दे रहे हैं एक्चुअली वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब भाई जब ये बॉडीज पानी के अंदर गई तो पानी का जो लेवल है, पानी का जो वेट है जो डिस्प्लेस हो गया, इस बॉडी को जगह देने के लिए जो अपनी जगह से हट गया, उसका जो वेट है वो आप कैसे पता करोगे, आप पता करोगे कैसे, इस बॉडी का वॉल्यूम जो कि पानी में डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड and multiplied by the acceleration due to gravity. If you know these, if you तीनों को जानते हो, then you can calculate the weight of the body, or you can say not the weight of the body, even weight of the liquid displaced by this body actually here you can calculate that, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग ये भी चीज प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है that is so true because you can see the volume into density, what is volume into density is mass, we know that, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो भाई देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज गोइंग टू गिव यू मास इंटू जी, दैट इज द वेट। इसका मतलब ये जब बॉडीज पानी में गई
तो उस बॉडी ने अपनी जगह बनाने के लिए जितने पानी को हटाया, उस पानी का वेट तुम्हें कैसे मिलने वाला है, वो किसके बराबर होने वाला है, बायोएंट फोर्स के। मतलब जो नेट बायोएंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है वो एक्चुअली में उस पानी के वेट के बराबर है जिस पानी को इस बॉडी ने हटा दिया। समझे? दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फटाफट से नोट कर लो इसे। चलो अभी देखो, अभी तुम्हें ये पता चल गया कि भाई जो नेट बायोएंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, जितना पानी हटा उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें थी, लिख लिख के हमने देख लिया, फॉर्मूला चेकआउट कर लिया। ठीक है, तो इससे तो हमें पता चल गया। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली देखने के लिए हमने कुछ काम किया। क्या काम किया? हमने 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लिए। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंसेस को लेने वक्त और जब हमने लिया तो हमने क्या किया, एक छोटी सी बॉडी भी ली। ठीक है, हमने इस बॉडी को लिया। ठीक है, ये जो बॉडी है एक्चुअली में हमने फिर क्या देखा, इसका वेट पहले से कितना है, मतलब इसका नेचुरल वेट इन द एयर कितना है। सो वी डिनोट इट बाय अ W1। सो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन लिया। ठीक है, एंड सस्पेंड इट विद अ स्प्रिंग बैलेंस, उसे स्प्रिंग बैलेंस से लटका दिया। ठीक है, एंड जब हम उसको स्प्रिंग बैलेंस से लटकाएंगे, डेफिनेट सी बात है ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये उस बॉडी का वेट शो करेगा, मेजर करेगा ना। तो हमने उसको क्या मेजर कर दिया, दैट इज W1। हमने उसे W1 बता दिया, भैया इस बॉडी का वेट जो है वो W1 है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने क्या किया, एक दूसरा जो है कंटेनर उसको भी लिया। ठीक है, बीकर बोल सकते हैं हम उसको। तो व्हाट वी डिड, हमने एक एम्प्टी बीकर ले लिया। ठीक है, ये एम्प्टी बीकर ले लिया और एम्प्टी बीकर से हमने इसका वेट जो है नाप लिया, पहले से पता कर लिया भाई इस एम्प्टी बीकर का जो वेट है वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो, now take an empty beaker and measure its weight by suspending it with the spring balance with the help of a thread, negligible weight। और मान लिया इस empty container का जो weight है that is W2। ठीक है, ये चीज हमने पता कर ली, हमें W1 पता चल चुका है और हमें W2 पता चल चुका है। ऑलराइट, W1 क्या है, W1 is actually the weight of the stone other body जिसको हमें पानी में सबमर्ज करना है। वेट 2 कितना है, W2 कितना है, इस खाली कंटेनर का, खाली बीकर का वेट है W2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, हमें केन लेना है। व्हाट इज अ केन? केन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है एक केन और इसके अंदर हमेशा जो है हमें देख सकते हैं, हमें जो है साइड ट्यूब मिलेगी और वो साइड ट्यूब जो है इस तरीके से बनी हुई कि पानी बाहर जा सके। ठीक है, सो यू कैन गेट दैट कि भाई हमें एक स्पाउट मिल जाएगा और हमें एक केन मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन डू दैट, टेक अ केन हैविंग अ साइड ट्यूब नोन एज स्पाउट, फिल केन विद वाटर अप टू द लेवल ऑफ द स्पाउट। तो ये जो केन है हमने कितना पानी भर दिया, इस लेवल तक पानी भर दिया। ठीक है, स्पाउट के लेवल तक हमने पानी भर दिया। अब जरा सा भी पानी अगर ऊपर आया तो वो इस केन की हेल्प से इस एम्प्टी कंटेनर में चला जाएगा। समझ में आया हमने ऐसा काम क्यों किया? ठीक है, अब चलो, अब हम 4th स्टेप करते हैं। 4th स्टेप क्या होगा कि हम धीरे धीरे, ये टंगा हुआ है ऑलरेडी वो स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ है, धीरे 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 हम क्या करेंगे, इस स्टोन को इस पानी के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे अंदर लेके जाएंगे पानी का लेवल ऊपर आ जाना चाहिए, जगह बनाएगी ना ये बॉडी पानी के अंदर जाने के बाद, तो वो अपनी जगह से पानी को हटा देगी तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब जैसे ये बॉडी नीचे जाएगी पानी ऊपर आएगा और ऊपर आते ही वो इस पाउच से जो भी एक्स्ट्रा पानी ऊपर आया वो साइड में से होते हुए वेसल में चला जाएगा, बीकर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हमने ये काम किया। तो अब हमने क्या किया, लोअर द स्टोन सस्पेंडेड विद द स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड द वाटर, धीरे धीरे हमने पानी के अंदर उसको डाला है। ठीक है, द स्टोन डिस्प्लेसेस द वाटर विच कम्स आउट ऑफ द केन थ्रू द स्पाउट। जितना भी पानी ऊपर आया, डिस्प्लेस होके ऊपर आया, वो इस पाउच से इस एम्प्टी बीकर में चला जाएगा। राइट, अब देखो, द वाटर कमिंग आउट ऑफ द केन इज कलेक्टेड इन द बीकर
when the water stops coming out of the spout, note the reading of the spring balance. This reading shows the weight of the stone inside the water. तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे पानी ऊपर आया, वो साइड से होता हुआ, स्पाउट में से होता हुआ बीकर में चला गया, एम्प्टी बीकर में चला गया. अब जब ये पूरा पानी चला जाएगा, पूरा का पूरा पानी, जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी पानी था जो ऊपर आ रहा था, जब वो एक्स्ट्रा पूरा पानी इस एम्प्टी कंटेनर में चला जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस बॉडी का वेट देखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि तब तक तो बायोएंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, बायोएंट फोर्स लग रहा होगा, राइट. तो उस वक्त हम क्या देखेंगे, इसका वेट नापेंगे, और लेट इट बी W3. ठीक है, दैट वेट इज W3 हियर. ठीक है, हम लोगों ने देख लिया. चलो अब आगे बढ़ते हैं, और हमें ये बात ऑलरेडी पता चलेगी कि भाई क्योंकि इस बेचारे के ऊपर बायोएंट फोर्स आएगा ड्यू टू लिक्विड, तो इसका जो W3 वैल्यू होगा दैट इज टोटली लेस देन द वेट W1 इन द एयर, राइट. इसका जो वेट W1 हमने एयर में मेजर किया था उससे कम होगा, राइट. चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड फिफ्थ पार्ट देखते हैं. नाउ मेजर द वेट ऑफ द बीकर अलोंग विद द वाटर कलेक्टेड इन इट, लेट इट बी W4. अब हमने क्या किया, इस बीकर का भी वेट जो है मेजर कर लिया. ठीक है, पहले हमने इसे खाली मेजर किया था, अब हमने जो एक्स्ट्रा पानी आया उसके साथ मेजर किया है, तो दैट इज W4 है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने अब क्या करना है, W1 माइनस W3 करना है. W1 माइनस W3 क्यों करना है, क्योंकि W1 इज द वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर, W3 इज द वेट ऑफ द वाटर इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द वाटर. ठीक है, तो दो वेट हमारे पास होंगे, W1 W2. ठीक है, आई विल मेंशन दैम. ठीक है, अभी उसके बाद जो है हम दोनों ने इसका डिफरेंस ले लिया, तो ये जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, दैट डिफरेंस वुड बी द बायोएंट फोर्स, राइट. दैट चेंज इन द लॉस इन वेट वुड बी द बायोएंट फोर्स. हमने स्टडी किया था, तो तुम्हें इसका क्या वैल्यू मिल जाएगा, बायोएंट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, बाय राइटिंग द W1 माइनस W3. अब इसी तरीके से हम इस एम्प्टी कंटेनर का भी करने वाले हैं. W4 माइनस का W2, ये जो डिफरेंस है ये हमें बताएगा वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एक्चुअली. ठीक है, तो हमें वो पता चल जाएगा. एंड उसके बाद अमेजिंगली व्हाट वी डिड, व्हाट वी गेट, व्हाट वी विल बी गेटिंग बोथ सेम हियर. W1 minus W3, W4 minus W2 would be the same here, and that is showing us the Archimedes principle. Alright, this is the upthrust and the equal to the weight of the body displaced. अब देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि भाई जो you can say जो हमारा W1 W2 है, हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ. जो W1 है, ठीक है, वो है वेट ऑफ बॉडी इन एयर. ठीक है, जो W1 था वो क्या था, इस बॉडी का हमने एयर में वेट लिया था, दैट इज दी W1. जो W2 था वो इस एम्प्टी कंटेनर का वेट था इन एयर. ठीक है, वेट ऑफ बीकर लिख देती हूँ, वेट ऑफ बीकर, ठीक है, इन एयर. अब तीसरा जो वेट था वो किसका वेट था, वापस से बॉडी का वेट था इन वाटर. ठीक है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, जब उसे पानी में डुबो दिया हमने. ठीक है, अब W4 क्या था, W4 इस एम्प्टी कंटेनर का वेट था विद वाटर, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर आ गया ना. तो अब क्या है, वेट ऑफ बीकर ठीक है, weight of beaker with water. And when you do that, जब आप W1 में से W3 हटाएंगे एंड W4 में से W2 हटाएंगे, तो you will be getting the change differences in the weight, and जो differences आएंगे both will be equal. तो आपने एक तरफ तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट मेजर किया, दूसरी तरफ आपने बायो एंड फोर्स मेजर किया, एंड देन यू गॉट इट लाइक बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो यू गॉट दैट, राइट. तो आपको इक्वल मिल गया, एंड दैट्स हाउ यू प्रूव कैन जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, दैट इज सो इजी एंड दैट इज सो ट्रू, राइट. यू गॉट दैट. तो आप इसे फटाफट से नोट कर लें.
ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेंसिटी. पहले तो तुम्हें डेंसिटी खुद से पता होगी, व्हाट इज दैट डेंसिटी. But what is the definition of the density? The ratio of mass to volume of the body is known as the density of the material of the body. So basically जो mass है, ठीक है, let it be कितना भी mass हो, और वो mass कितना space cover up कर रहा है, अगर हम ये पता कर लें तो that is taken as a new term known as density. ठीक है, तो जैसे स्टोन का मास है ना, वो कैसा कलेक्टेड रहता है, स्टोन का मास कलेक्टेड रहता है, मतलब वो लेट इट बी लाइक 1 kg स्टोन है, ठीक है, 1 kg मास का स्टोन है, तो वो क्या करेगा, अपना जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा रखता है. 1 kg का जो स्टोन होगा वो बहुत इकट्ठा होगा, दैट मीन्स यू कैन से उसका होल मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कंसंट्रेटेड एक जगह पे कलेक्टेड होगा. ठीक है, तो वो पूरा स्पेस कम जो है कवर अप करेगा, स्पेस अगर वो कवर अप करता है, राइट. वहीं पर अगर हम बात करें 1 kg ऑफ कॉटन, तो कॉटन क्या करता है, कॉटन फैला हुआ होता है ना, तो मतलब जो 1 kg का कॉटन होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर अप करेगा. इसी वजह से 1 kg कॉटन सेम मास है बट उसका डेंसिटी वुड बी डिफरेंट. उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टोन की बात करते हैं, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है बिकॉज वही 1 kg का मास लेस स्पेस कवर अप करता है. ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग. अगर वो लेस वॉल्यूम कवर अप करेगा तो डेंसिटी वुड बी मोर, अगर वही सेम मास ज़्यादा वॉल्यूम कवर अप करेगा तो डेंसिटी वुड बी लेस. एंड दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन द डेंसिटी. वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी. व्हाट इज दैट? Density equals to mass divided by volume. और डेंसिटी को जनरली हम किससे शो करते हैं, रो से शो करते हैं. ठीक है, इधर आपको कई बुक्स में डी भी मिलेगा, मतलब हम डेंसिटी को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रो सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ दिस रो सिंबल. ठीक है, डबल जो है डबल डबल हो गया, तो मैं इसे वापस से बना देती हूँ तुम लोग के लिए. मास का तो तुमको पता ही है, हम स्मॉल m से शो करते हैं, वॉल्यूम को v से शो करते हैं. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आप ये बात जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं कि भाई अगर वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम अगर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, 1 मीटर क्यूब ही वॉल्यूम को रखा, तो क्या होगा, तो डेंसिटी मास के बराबर हो जाएगी. तो इसका मतलब हो गया कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हमें इससे पता चली कि भाई एक यू कैन से 1 मीटर क्यूब में अगर हम ऐसा कर देते हैं, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब अगर होता है, फिक्स कर देते हैं, तो उसका जो मास है वो डेंसिटी के बराबर हो जाता है. ठीक है, दैट इज ओनली व्हेन वी फिक्स द वॉल्यूम. अगर हम वॉल्यूम का जो वैल्यू है स्पेसिफिकली फिक्स कर दें, 1 मीटर क्यूब कर दें, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, यूनिट आप लोग जानते ही हैं, यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट आप लोग को नहीं पता क्या? देखो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, है ना, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब. तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं, एसआई यूनिट्स में अगर हम देखते हैं, तो ये जो एसआई यूनिट है वो हमने देख लिया है और हमने बोल दिया है केजी पर मीटर क्यूब. एसआई यूनिट्स में है तो उसका जो एसआई यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब. अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में देखें, अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में देखें तो इट वुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इट वुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, so it is gram per centimeter cube. So basically you can note this down and then we will be talking about the relative density.
ऑलराइट, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ जो कि है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये देखो, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। रिमेंबर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने भी यही काम किया था, मैंने तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी बताई थी अर्थ की, ठीक है, 5.5 समथिंग आई थी। तो वो जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, एक्चुअली में रिलेटिव बोला गया तो आप इसे समझ लो कि हम इसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम एक्चुअल डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, हम उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटीज वी टॉक अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो you can see here the ratio of density of substance to the ratio of to the density of water at 4 degree Celsius is actually the relative density। और ये जो relative density होती है ये कोई नंबर होती है, ठीक है, हमेशा नंबर मिलेगी। क्यों? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल ओनली गेटिंग अ नंबर, और वो जो नंबर होगा ना वो भी तुम्हें सिर्फ यही चीज स्पेसिफाई कर रहा होगा कि भाई वाटर के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी कितना है, ठीक है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ एक सिंपल प्योर नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें तो वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन सब्सटेंस इज हैवियर than the equal volume of water. When we say that relative density of silver is 10.5, it means that silver is 10.5 times heavier than equal volume of the water. Basically we just compare that substance with the you can say the density of the water, हम उनसे compare करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर आपको बता रहा है कि भाई इस बॉडी का ये रिलेटिव डेंसिटी है, तो मतलब ये डेंसिटी विद कंपैरिजन टू द वाटर आपको शो करके दे रहा है, दैट इज जस्ट द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो मतलब इफ यू आर द कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, देन यू आर गोइंग टू गेट द रिलेटिव डेंसिटी एंड दैट इज जस्ट अ नंबर, इट इज नो यूनिट, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट एक्चुअली, ठीक है। तो यू कैन नोट दिस डाउन एंड देन वी आर गोइंग टू एंड आवर चैप्टर। Alright, so that is the end of this lecture. We have studied Archimedes principle. Next वाले lecture के अंदर we will be talking about more Archimedes principle, its uses, ठीक है, ये सब हम लोग discuss करेंगे along with the law of flotation, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.